Very wonderful to all my dear students. Welcome to the class. Today we are going to start a new chapter in our English literature book, chapter number 2. And the name of the chapter is The Visit to the Mansion. The Visit to the Mansion. That is an extract from Little Women. Little Women. And first is this, what is the meaning of extract? Extract means there is a novel and the name of the novel is Little Women. Okay? And this chapter is a small part of this novel. That part is known as extract. और in Hindi we say लिटिल वुमेन जो नॉवेल है उसका एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा अंश हम उसको चैप्टर के रूप में रीड करेंगे. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज दिस. एंड हु इज द राइटर? द राइटर इज लुइस मे एलकोट, हु इज अ फेमस अमेरिकन राइटर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द हार्ड वर्ड्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. First is completely. Completely. The first word is completely. Repeat. Completely. Delicious. 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 Completely means totally finished. पूरा होना. Completely, पूरी तरह से. Delicious means tasty. After that, BLANCMANGE. BLAN. Just listen carefully the pronunciation of this word. BLANCMANGE. Bluemonge. Listen again. Bluemonge. The pronunciation is totally different. The spelling is this, but the pronunciation is Bluemonge. And what's the meaning of Bluemonge? Bluemonge is a name of a sweet dish. Okay? This is a name of one sweet dish. Bluemonge. After that, STRANGER. 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 And stranger means अजनबी, जिसे हम जानते नहीं हैं. DELIGHTED. 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 Simply we can say in a happy manner. Delighted. EXAMINE. 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 And the meaning of examine means to check. To check. As doctor examining the patient, as the teacher examining your question papers, answer sheets. TREMBLING. 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 And according to this chapter here, the trembling means when you are feeling cold and you are shivering. जब आप ठंड के कारण आपके हाथ या आपका फेस कांप रहा है. According to this chapter, here the word we have used is trembling. PORTRAIT. 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 Portrait means painting. Repeat again. Completely. Delicious. Bluemonge. Stranger. Delighted. Examine. Trembling. Portrait. Now students, open the page number 15 of your English reader book fast, chapter number 2, The Visit to the Mansion. This we will start now, and this classwork hard words you have to do in your notebook. So open the book fast. The Visit to the Mansion. And mansion means a very large, impressive house. Okay? Jo Mart sometimes stood before her old brown house
and looked at the stately mansion of the Lawrence. Yes, the girl named Jo March. Okay, sometimes she just stood near or front of her house and looked at the stately mansion that was of लॉरेंस. जो मार्च अपने ओल्ड पुराने ब्राउन हाउस के बाहर खड़े होके सामने जो स्टेटली मैंशन था, स्टेटली मैंशन अ वेरी ग्रेट इम्प्रेसिव हाउस जो किसका था, लॉरेंस, उसे देखती थी. She knew that only old Mr. Lawrence and his grandson Laurie lived there. But to her, the mansion seemed to be an enchanted palace, filled with delightful things. She longed to see them and befriend Laurie, who looked very lonely and shy. She knew, उसे पता था कि उस मैंशन में कौन कौन रहते हैं. ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, हु लिव देयर, ओल्ड मिस्टर लॉरेंस एंड हिज ग्रैंडसन लॉरी. मिस्टर लॉरेंस एंड ग्रैंडसन लॉरी. बट उसके लिए वो जो मैंशन था वो किसी पैलेस से कम नहीं था और वो लॉरी की फ्रेंड बनना चाहती थी. लॉरी द बॉय, जो मार्च लॉरी की फ्रेंड बनना चाहती थी. हु लुक, जो हमेशा कैसे दिखता था, लोनली, अकेला और शाय. सो शी डिसाइडेड टू विजिट द लॉरेंस मैंशन एंड टेल मिस्टर लॉरेंस टू अलाउ लॉरी टू लीव द हाउस एंड प्ले. सो शी डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड कर लिया कि लॉरी पूरे दिन अकेला रहता है, ही इज़ अ शाय बॉय. तो उसने डिसाइड किया कि वह लॉरेंस मैंशन जाएगी और मिस्टर लॉरेंस से बात करेगी कि आप लॉरी को अलाउ करें कि वो घर से बाहर भी निकले और हमारे साथ खेले भी. ओके, दिस वॉज द शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ chapter starts. One snowy afternoon, Joe saw Mr. Lawrence drive off. She set out towards the mansion and looked around. It was completely quiet. One snowy afternoon. एक आफ्टरनून जब स्नोफॉल हो रही थी, जॉ ने क्या देखा कि मिस्टर जो लॉरेंस है, डैड ग्रैंडफादर, वो कहीं ड्राइविंग करके बाहर गए हैं. She set out towards the mansion. वो मैंशन के साइड में गई और उधर देखने लगी. It was completely quiet. वहाँ बिल्कुल शांति थी. Suddenly, she spotted a curly head leaning against a desk at an upper window. There he is, thought Joe. अचानक उसे कर्ली हेड, जिसके कर्ली हेयर से ऐसा एक हेड नीचे डेस्क की तरफ झुका हुआ विंडो पे दिखाई दिया. देयर ही इज़, तो वो वहाँ है. पुअर बॉय, आई विल टॉस अप अ स्नोबॉल एंड मेक हिम लुक आउट. मैं अभी उसके पास स्नोबॉल टॉस करूँगी. स्नोबॉल मीन्स व्हेन देयर इज़ अ स्नोफॉल यू कैन टेक अ स्नो एंड मेक अ बॉल. बर्फ़ से बॉल बना के उसे ऊपर उछालना. टॉस अप मीन्स ऊपर उछालना. फिर वो मुझे पक्का दिखेगा. Up went a ball of snow and the head turned at once. और जैसे ही स्नोबॉल ऊपर गई, you can see here, this girl just Joe March throw the snowball, toss up the snowball. Laurie peeped out, eyes bright with wonder. तभी लॉरी ने बाहर देखा with the bright eyes. When she spotted Joe, he began to smile. और जैसे ही उसके बाद जब लॉरी ने जो को देखा तो वो स्माइल करने लग गया. Joe called out, "How do you do? Are you sick?" Then this girl Joe asked to Laurie, "How do आप तुम कैसे हो? Are you sick? क्या आप बीमार हैं?" Sick means बीमार. Laurie croaked hoarsely.
I have a bad cold and it's very dull here. Will you come upstairs and talk to me, please? Then Laurie said, this boy said, that with the crocked horse means क्रॉक्ड हॉर्सली मीन्स जब आपके गले में पेन हो रहा हो आपके थ्रोट में और उस टाइम जो आपकी वॉइस निकलती है बहुत ही हार्श मोटी मोटी आवाज़, उस आवाज़ में लॉरी ने कहा आई हैव अ बैड कोल्ड, हाँ मुझे ठंड लगी है और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम ऊपर की तरफ आ जाओ प्लीज़. आई विल आस्क मदर. वेट, देन वॉट जो सेड? देन जो मार्च सेड फर्स्ट आई विल आस्क टू माई मदर. और वैसे भी हमें कहीं भी जाना है तो अपने पेरेंट्स से पूछ के जाना चाहिए. एंड देन शी वेंट बैक टू हर होम. हु? दिस जो मार्च. शी वेंट बैक टू हर होम एंड जस्ट after then just we will read. She went back to her home to ask to her mother. Excited Laurie flew about to get ready and tidy his room. लॉरी था वो भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उनके घर कभी कोई आता नहीं था और फटाफट से अपने रूम को टाइडी मीन्स नीट और क्लीन करने लगा. A little later there was a loud ring followed by a quick footsteps. और थोड़ी ही देर में एक लाउड रिंग के साथ और बहुत ही फटाफट चलने वाले फुट स्टेप्स के साथ देयर वॉज अ नॉक ऑन हिज डोर. वहाँ पर उसकी डोर पे एक नॉक हुई. किसके डोर पे? लॉरी के. एंड जो अपीयर्ड, और जो वहाँ पर आ चुकी थी. She was carrying a covered dish in one hand and the 3 kittens in the other. उसके एक हाथ में तो डिश थी और उसके दूसरे हाथ में क्या थे? 3 kittens. Here I am, she said briskly. मैं यहाँ हूँ. उसने बहुत ही एनर्जी के साथ बोला. हूँ? जो मार्च. और वो किसके साथ आई थी? इन वन हैंड कवर्ड डिश, उसके एक हाथ में ढकी हुई कोई डिश थी. एंड इन अदर हैंड देयर वर 3 किटन्स, और उसके दूसरे हैंड में 3 किटन्स थे. मदर सेंट हर लव. मैग सेंट सम ऑफ हर डिलीशियस ब्लूमॉन्स एंड Beth thought her cats would be comforting. Yes. Then Joe said in loudly in a full energy voice, here I am, मैं यहाँ हूँ. Mother sent her love. Mother means Joe's mother. मम्मा ने आपके लिए लव भेजा है, मीन्स आपके लिए प्यार भेजा है. मैग सेंड सम ऑफ हर डिलीशियस ब्लू मॉन्स, और जो मैग है उसने खुद का पसंदीदा जो ब्लू मॉन्स डिश है वो तुम्हारे लिए भेजी है. एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कम्फर्टिंग, और बेथ को लगा कि उसकी जो कैट्स हैं वो यहाँ पे कंफर्ट फील करेंगी, इसलिए उसने मेरे साथ कैट्स भेज दी. आई न्यू यू वुड लाफ एट दैम बट आई कुडंट रिफ्यूज़. मुझे पता है तुम इन सब पर हंसोगे क्योंकि मेरी मम्मा ने भी भेजा है, बेथ मैग सब ने कुछ भेजा है. बट आई कुडंट रिफ्यूज़, लेकिन मैं तुम्हें हंसने से मना नहीं करूँगी. जो जस्ट सेड टू द लॉरी. द किटन्स टर्न्ड आउट टू बी just the thing as Laurie started laughing over them and soon grew cheerful. जैसे ही किटन्स बाहर की तरफ निकली, लॉरी ने बहुत तेज़ लाफिंग करना शुरू किया और वहाँ का पूरा जो सराउंडिंग है वो पूरा चीयरफुल हो गया, मीन्स हैप्पीनेस से भर गया. डैड लुक्स टू प्रीटी टू ईट, ही सेड स्माइलिंग एज जो शोड हिम द ब्लू मॉन्स. और जैसे ही जो मार्च ने डिश ओपन करके ब्लू मॉन्स दिखाया, देन लॉरी सेड ये दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट इज़ सॉफ्ट एंड विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सॉर थ्रोट, सेड जो.
ये जो डिश है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी है, जैसे आप मुंह में रखेंगे ये सीधा अंदर स्लिप हो जाएगी विदाउट हर्टिंग योर सॉर थ्रोट। और जो तुम्हारे थ्रोट में दर्द हो रहा है वहाँ पे बिना कोई चोट पहुँचाए सीधा ये अंदर स्लिप हो जाएगी। जो सेड टू द लॉरी, हाउ काइंड यू आर सेड लॉरी। देन लॉरी सेड, तुम बहुत काइंड हो, दयालु हो। नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटरटेन यू। देन लॉरी सेड कि अब तुम बैठ जाओ और मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। नो नो यू शुड रेस्ट, शैल आई रीड टू यू asked Joe, looking at some books nearby. Then the Joe said, नहीं, she just said to Laurie, you should rest, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं क्या यहाँ से कुछ पढ़ सकती हूँ? जॉ ने वहाँ रखी बुक्स को देखकर बोला। I have read all them, and if you don't mind, I would like to talk, answered Laurie. Then Laurie replied, वो सभी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बुक्स तो मैं अकेला पूरे दिन पढ़ता हूँ। Not a bit, Beth says. I keep talking all day and never know when to stop. नहीं, बिल्कुल नहीं, who said? जो That Beth जो है वो हमेशा मेरे लिए कहती है कि मैं पूरे दिन बातें करती रहती हूँ और मैं चुप ही नहीं होती। Who said? जो सेट फॉर हर सिस्टर बेथ। बीच में जो ने क्या बोला अपनी सिस्टर के लिए? मैं तुमसे कैसे बात करूँ, मेरी सिस्टर तो कहती है मैं पूरे दिन बात करती रहती हूँ, चुप ही नहीं होती हूँ। इज बेथ द रोजी वन हु समटाइम्स गोज आउट विद अ लिटिल बास्केट? आस्क्ड लॉरी विद इंटरेस्ट। देन लॉरी आस्क्ड, तब लॉरी ने पूछा, क्या बेथ वही है जो रोजी जैसी है और जो हमेशा बास्केट लेके समटाइम्स बाहर की तरफ जाती है कहीं पे बास्केट लेके? क्या उसी का नाम बेथ है? यस, टुडे वी विल रीड टिल हियर, लेट्स सी व्हाट द जो रिप्लाइड, दैट वी विल रीड टुमारो। टुडे वी हैव रेड दैट देयर इज अ गर्ल जो who wants to see the mansion and who wants to talk Laurie. So she tossed up a snowball. Laurie saw her and called her upstairs. Joe came at Laurie's house with in one hand of dish blue moons and with her 3 kittens, and they are talking. Joe is saying that I want to read your books and Laurie is saying I want to talk to you. Okay, today till here all of you also read the chapter. Remaining chapter we will read tomorrow. Okay students, thank you.